Good evening to everybody. In this session, we will be covering the departmental proceeding, and that very presentation is for the purpose of those who want a glimpse of departmental proceeding. So I am not covering the court cases or other allied rules which are followed or other practices which are followed, precautions that is required to be taken during the departmental proceedings and all those things. This is simply a glimpse presentation over departmental proceeding. So scope of this is limited to only for the purpose of facing examination, departmental examinations and all that. I'm directly coming to the presentation. So this is disciplinary proceeding, which is also called departmental proceeding. And this is covered under CCS CCA Rule in central government. This is the first session on this. If you have any query, you can write mail to me. And this is my WhatsApp address. At the same time, my mobile address. You can contact me over this also. First of all, I will start with the important definition and what are different interpretations of these definitions. So the first one is, and perhaps the most important, is the appointing authority. Appointing authority has a very important role, and perhaps the most important role in the whole departmental or disciplinary proceeding. Who is the appointing authority for the purpose of departmental or disciplinary proceeding? Maybe for other service purpose, appointing authority may be the fixed person, but here the person is changing. Here the designation is changing during the departmental proceeding. So we have to be very clear about that. The appointing authority is the senior most of the below, of these below four. There are two situations. In one situation, the person is working where he holds the lien. And the another situation is person is not working where he holds the lien. He may be on deputation, foreign service, or even after technical designation, he has joined to another organization and holding the lien in his parent organization. So in all those cases, appointing authority of the service where the government servant is working. Here the service means the cadre. The appointing authority of the cadre where the person is working. Similarly, appointing authority of the particular post where the person is working. Here, the particular post, not the cadre. The third one is the appointing authority who has appointed the person in the service. Might be some other authority has appointed the person in this service where he is presently working, whether with lien or not, whether in officiating capacity or in substantive capacity. In both the cases, the appointing authority there. And appointing authority of the post where he holds the lien. The senior most of all these will be the appointing authority of the person. So we have to be very particular, particularly in those cases where the person is not officiating the post. अगर वो पोस्ट को ऑफिशिएट कर रहा है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बड़ा सीधा है कि जो पर्सन जहां उसका लियन है उस पोस्ट का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी. लेकिन यदि उस पोस्ट को वो ऑफिशिएट नहीं कर रहा है, सॉरी उस पोस्ट को सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा है, ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में ही इज वर्किंग देयर, then the situation will be different and the person senior most among these four will be his appointing authority. The next one is disciplinary authority. Disciplinary authority is the authority who is competent to impose the penalty on the person and at the same time the person who is capable of initiating the proceeding against the person. This is defined under Rule 11. What Rule 11 says, appointing authority competent to impose penalty on the government servant specified under Rule 11 as specified under Rule 12. Okay? So these authorities are those authorities who are specified under Rule 12, and two authorities are authorized for that to act as disciplinary authority, either president or the appointing authority or any other authority declared as disciplinary authority by some general or a specific order. ये
क्लियर समझना इसको जरूरी है. फर्स्ट थिंग, president will be the disciplinary authority. He can initiate disciplinary proceeding, or president may delegate the power to somebody else. If it is not there, then the appointing authority, the person who have appointed the person, and which is defined under this provision. The third one is the appointing authority के अलावा any other authority जिसको कि किसी general order से अगर ये declare कर दिया जाए कि for this post, though not the appointing authority, this person will be the disciplinary authority, he will be the disciplinary authority. या specific order से हो सकता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्ट ना करना चाहे, प्रेसिडेंट ना एक्ट करना चाहे, एक पर्टिकुलर केस में या एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए माइट बी बाय सम स्पेशल ऑर्डर अ पर्टिकुलर अथॉरिटी मे बी डिक्लेयर्ड एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सो ही विल बी द अथॉरिटी. सो दिस इज द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. सस्पेंडिंग अथॉरिटी. Now, what is the difference between suspending authority and disciplinary authority? एक ये भी समझना बड़ा जरूरी है. And at the same time, who can suspend the person? Appointing authority, disciplinary authority, or any authority senior to the disciplinary authority can suspend a person. So ये समझने की जरूरत है कि सस्पेंडिंग अथॉरिटी जो है वो केवल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही नहीं, जबकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हमेशा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से स्टार्ट करेगा. And anybody who is senior to disciplinary authority, not essentially be the disciplinary authority to the person. ये कोई जरूरी नहीं. हर सीनियर, सपोज कीजिए my disciplinary authority is under secretary, so automatically deputy secretary will not be my disciplinary authority unless and until he is my appointing authority or have been declared the disciplinary authority. So ये तीन टर्मिनोलॉजी बड़े ये हैं: appointing authority, disciplinary authority to initiate disciplinary proceeding, disciplinary authority to award the punishment, disciplinary authority who can initiate and also award the punishment. ये तीनों तीन अलग अलग चीजें हैं. एक अथॉरिटी हो सकता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को केवल कहा गया हो कि आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, पनिशमेंट अवार्ड नहीं कर सकते, या आप यही पनिशमेंट अवार्ड कर सकते हैं, दूसरा पनिशमेंट नहीं अवार्ड कर सकते. दूसरा ये हो सकता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कहा जाए कि आप पनिशमेंट अवार्ड कर सकते हैं, या आप दोनों कर सकते हैं. So these are three circumstances where there may be different disciplinary authorities. Suspending authority, any authority, appointing authority तो होगा ही, disciplinary authority होगा, and any authority who will be senior to disciplinary authority, to whom the disciplinary authority is a subordinate, can also act as suspending authority. एक चीज और मैं बताऊं, this suspending authority, yes, suspension is not a punishment. This is an administrative action. क्या है सस्पेंशन? जब आगे हम देखेंगे तो पूरा का पूरा केस क्लियर होगा. सो देयर मे बी मेनी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी केवल उसको दिया जा सकता है कि यू विल स्टार्ट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. एक हो सकता है कि पनिशमेंट आप केवल देंगे, हो सकता है कि दोनों एक आदमी को दिया गया हो पावर. सो देयर मे बी डिफरेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पोस्ट, बट there will be only one appointing authority, because appointing authority में बहुत clear कहा हुआ है the senior most, so senior most एक ही होगा. So there will be one appointing authority and there will be maybe more than one disciplinary authority who will be declared as disciplinary authority to a person by some specific order or by some general order. दोनों में से किसी भी तरह से हो सकता है. एट द सेम टाइम अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी डिसिप्लिनरी एक्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट तो एक्ट कर ही सकते हैं. नेक्स्ट, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट, दैट इज इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. दिस इज आल्सो डिफाइंड अंडर रूल 13. डिटेल में रूल 13 में डिफाइन किया हुआ है. द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी empowered by the president by general or special order may institute the disciplinary proceeding against the person. प्रेसिडेंट तो कर ही सकते हैं. डायरेक्ट एंड एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग. सो प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम
या तो खुद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर ले या किसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कहे कि आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कीजिए। हम फिर यहां से देखेंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, उसके डेफिनेशन को, एंड ही विल basically institute the departmental proceeding. So ultimately, departmental proceeding is instituted by the disciplinary authority. A disciplinary authority competent to impose any of the penalty specified in clause 1 to 4, that is minor penalty. हम देखेंगे अभी minor penalty and major penalty क्या होता है, which is defined under Rule 11, may institute disciplinary proceeding against government servant and for the imposition of any penalty under clause this to this major penalty under Rule 11. कहने का मतलब है कि if there are two category of penalties, one is minor penalty, another is major penalty. यदि कोई माइनर पेनाल्टी के लिए ऑथराइज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, हो सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को पावर दिया गया हो कि भाई आप सर्विस से नहीं हटा सकते, इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, सेंसर लगा सकते हैं. He can also start the inquiry against the person for the purpose of major penalty. जिसके पास मेजर पेनाल्टी का पावर है वो तो इंक्वायरी स्टार्ट करा ही सकता है. माइनर पेनाल्टी का जिसके पास पावर है वो भी मेजर पेनाल्टी के लिए इंक्वायरी इनिशिएट करा सकता है. जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पे अपने कमेंट के साथ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को वो भेज देगा फॉर डिसीजन कि भाई इसको पनिशमेंट देना है, बिकॉज आई एम नॉट एम्पावर्ड फॉर द पनिशमेंट, सो यू विल डिसाइड द पनिशमेंट. ठीक है. So this is the procedure, this is the authority who can institute the or initiate the departmental proceeding against a person. Next, government servant. A permanent employee, गौर करने वाली बात है, a permanent employee, if the employee is not permanent, he is not a government servant for the purpose of departmental proceeding. टेम्पोररी एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के लिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, बिकॉज डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कैन ओनली एंड ओनली बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आइदर इन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी और सब्सटेंटिव कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटी में दोनों में काम कर, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है. Head of the department and head of the office, authority who can suspend as an administrative action. जैसे मैंने बताया कि suspension is an administrative action, not a punitive action, punishment वाला action नहीं है. So head of the department and head of the office अगर कहीं use हुआ है term, तो how we will decide head of the office and head of the department? This is defined under FR and SR. This is defined under FR and SR for the purpose of head of the department, and under GFR for the purpose of head of office. So departmental proceeding कहता है कि while deciding who is head of the department, follow fundamental and supplementary rules, and for deciding head of the office, follow GFR. ये इनके अंतर्गत किसको डिफाइन किया हुआ है head of the department and head of the office. Once this is decided, the action starts. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, सस्पेंशन. रूल 10, रूल 3 to 9, जस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, सो मैंने नहीं कवर किया हुआ है. सस्पेंशन. सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? दिस इज नोवेयर डिफाइंड इन द टोटल दिस थिंग. CCA रूल, CCS CCA रूल में कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है अलग से. बट सस्पेंशन इज टेम्पोररी विड्रॉवल ऑफ ड्यूटी विद रिडक्शन इन पावर एंड पे. क्या मतलब है? क्या मतलब है? टेम्पोररी विड्रॉवल ऑफ ड्यूटी विद रिडक्शन इन पावर एंड पे. उससे ड्यूटीज सारी की सारी हटा ली जाती हैं टेम्पोरली, लेकिन उसका सारा का सारा पावर नहीं खत्म हो जाता है, या उसका पे पूरा जीरो नहीं हो जाता है. दोनों जगह पे रिडक्शन है. अब आप कहेंगे पावर है और ड्यूटी नहीं कर रहा है. या इट कैन हैपन, इट कैन हैपन. द पर्सन इज स्टिल एन ऑफिसर या पर्सन इज स्टिल एन एम्प्लॉय,
लेकिन कुछ पावर्स वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। जैसे अगर उसको कहा जाता है ऑफिस अटेंड करने के लिए, ही विल अटेंड द ऑफिस। या कई जगह, कई स्टेट, कई ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन भी आपको आना है, अटेंडेंस लगाना है, ऑफिस में बैठना है, आप आएंगे। और जब आप आएंगे तो अपने सिटिंग प्लेस के ऑनर आप ही, यू हैव द पावर टू वर्क फ्रॉम देयर, टू सिट देयर। सो पावर में रिडक्शन है, पावर टोटल नहीं खत्म होता है। उसी तरह से पे रिड्यूस्ड पे मिलता है, कितना पे मिलता है वो हम देखेंगे। एंड टेम्पोररी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज, ऑल द ड्यूटीज जो उसके पास होती है वो हटा ली जाती है। सस्पेंशन, ग्राउंड सस्पेंशन का क्या क्या होता है? सो देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन, जिसमें एक ग्राउंड ऑफिस से रिलेटेड है, 2 ग्राउंड ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कहने का मतलब है वो पर्सन जहां काम कर रहा है वहां से रिलेटेड है। सो ये हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर हम किसी पर्सन को सस्पेंड कर सकते हैं। कंटेम्पलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, यदि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होने वाली, डिसीजन इस पे लिया जा चुका है, एक्सपेक्टेड है कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, देन एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे, इफ देयर इज सम इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड कोई क्रिमिनल ऑफेंस उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में और इन इकोनॉमिक क्राइम और एनीवेयर, देन ये चीज जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में आई ये चीज, दिस विल बी इन्फॉर्म टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और द कंपिटेंट अथॉरिटी। एंड इवन इफ अगर इसको इन्फॉर्म नहीं भी किया गया है, इवन इफ अगर इसको इन्फॉर्म नहीं भी किया गया है, तब भी जैसे ही उसके नॉलेज में आएगा, इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से मिले, द मोमेंट इट कम्स टू हिज नॉलेज, द पर्सन विल बी सस्पेंडेड। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड है, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होने वाला है। और हमेशा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का मतलब पूरी की पूरी इंक्वायरी ही नहीं होती है, एक सो कॉल पूछ करके एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है, जिसपे कि माइनर पेनल्टी अवार्ड हो। तो अगर इस तरह का कोई भी केस है जहां डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड है, सो इन एवरी केस सस्पेंशन डज नॉट टेक प्लेस। सस्पेंशन टेक्स प्लेस इन 4 सर्कमस्टांसेस ओनली। पहला, यदि उस आदमी के ऑफिस में प्रेजेंस से इट इज एक्सपेक्टेड दैट सम डॉक्यूमेंट में बी डिस्ट्रॉयड और टेम्पर्ड, यदि एक्सपेक्टेड है तो सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए क्यों एक्सपेक्टेड है। द सेकेंड, इफ हिज प्रेजेंस अफेक्ट्स द डिसिप्लिन, किसी डिसिप्लिन के ग्राउंड पे, जनरल डिसिप्लिन के ग्राउंड पे उसको, उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक्सपेक्टेड है, हो सकता है उसने मारपीट की हो, फिजिकली हैंडल किया हो किसी आदमी को, एंड उसके फिर से प्रेजेंस से वही डिसिप्लिन टूटने का डर, तब उसको सस्पेंड किया जा सकता है। यदि कोई पब्लिक स्कैंडल हो जाए, कोई इस तरह की चीज हो जाए कि ऑफिस का रेपुटेशन एकाएक बदनाम होने का खतरा हो, तो इन वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट उस पर्सन को सस्पेंड किया जा सकता है। और प्राइमा फेसिया यदि एविडेंस हो कि इंक्वायरी हुई, तो पर्सन का डिसमिसल या कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब कोर्ट से सजा, कन्विक्शन का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से कुछ भी नहीं लेना देना लगता है, ठीक है। सो डिसमिसल या कन्विक्शन का एविडेंस हो तब सस्पेंड किया सकता है। सो सस्पेंशन इन्हीं 4 केसेस, 4 कंडीशंस में होते हैं। व्हाट आर रीजंस ऑफ सस्पेंशन? दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। हो सकता है सस्पेंशन के समय ना कम्युनिकेट किया गया हो, बेटर तो होता है कि सस्पेंशन ऑर्डर के फॉर्मेट में ही मेंशन होता है, you are suspended on this ground, this reason. If it is not mentioned, this is required to be communicated within a period of 3 months. So 3 month के अंदर उसको कम्युनिकेट करना होता है, या चार्जशीट इज टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। तो जैसे ही चार्जशीट इशू हो गया, क्लियर हो गया कि भाई ये पर्सन सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ दिस चार्जशीट एंड रीजन इज दिस, सो 3 month के अंदर या तो चार्जशीट, अगर चार्जशीट नहीं इशू हो रहा है, चार्जशीट इशू करने में डिले हो रहा है, द रीजन ऑफ सस्पेंशन विल बी कम्युनिकेटेड।
डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन ये क्या होता है? डीम्ड सस्पेंशन is a situation where a person is assumed to be suspended, deemed to be suspended, अपने आप सस्पेंड हो जाता है, उसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि स्पेसिफिक ऑर्डर भी इसके लिए इशू हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन अपने आप माना जाएगा कि पर्सन सस्पेंडेड है इफ ही इज डिटेन्ड और कन्विक्टेड फॉर 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स के लिए पुलिस उसको डिटेन कर देती है या 48 आवर के लिए वो कन्विक्ट हो जाता है, दोनों केस में सजा हो जा रही है 48 आवर से, ही विल बी सस्पेंडेड। इसमें किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। ऑन अपील और रिव्यू, यदि एक पर्सन, इसको ऐसा समझा जाए, पर्सन वॉज सस्पेंडेड, उसको पनिशमेंट हो गया, पनिशमेंट में बाद में ये डिक्लेयर हुआ कि ना पनिशमेंट वॉज नॉट रॉन्ग and he is reinstated to the service, punishment हुआ था removal from service का, he is reinstated back to the service. So unless and until it is mentioned in the order कि सस्पेंशन भी यहाँ रिवोक किया जा रहा है, बिकॉज पहले वो सस्पेंडेड था, यहां से सर्विस से हटा था, तो बैक सस्पेंशन पे ही। सस्पेंशन विदाउट ऑर्डर कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी वेरी क्लियर कि सस्पेंशन विदाउट ऑर्डर किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं हटाया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहां पे देखें, सिमिलरली अगर कोई सस्पेंशन में था, हटा दिया गया था सर्विस से, सस्पेंशन के बाद चाहे वो अपील के थ्रू फिर से रीइंस्टेट हुआ हो या कोर्ट को थ्रू फिर से रीइंस्टेट हुआ हो, बैक वो सस्पेंशन पोजीशन पे ही होगा। अगर सस्पेंडेड नहीं था और हटा दिया गया था प्रोसीडिंग के बाद, तो बैक वो अनसस्पेंडेड पोजीशन पे ही होगा। सो इन बोथ सिचुएशंस व्हेन अ पर्सन इज रीइंस्टेटेड एज सस्पेंडेड, दिस इज डीम्ड एज सस्पेंडेड। इसको कहते हैं डीम्ड सस्पेंशन, कि वो बैक भी हो रहा है तो अपने आप सस्पेंडेड है, वहां अलग से ऑर्डर की जरूरत नहीं। रिव्यू, कोई भी सस्पेंशन by the same authority or any authority senior to the authority who has suspended the person, उसके द्वारा 90 डे में रिव्यू किया जाता है, फिर से देखा जाता है कि सस्पेंशन की जरूरत है कि नहीं, उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है या सस्पेंशन को रिवोक करने की जरूरत है। एट अ टाइम सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 180 डेज, यानी 90 डेज के बाद देखा जा रहा है, अगेन 180 डेज यानी 270 डेज तक वो रह सकता है। Deemed suspension can be revoked for 90 days. No review if suspension is on the ground of detention. अगर कोई सस्पेंशन, deemed suspension cannot be, sorry, that's why मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो गया था, cannot be revoked. Deemed suspension जो है, जब तक ये रीजन अपने आप खत्म नहीं होगा, तब तक वो अपने आप 90 डेज में रिवोक नहीं हो जाएगा। ठीक है। नो रिव्यू इफ सस्पेंशन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। अगर डिटेंशन के ग्राउंड पे सस्पेंशन हुआ है, डिटेंट फॉर 48 आवर तो डीम्ड सस्पेंडेड है, ही कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ released and the information is provided to the competent authority. CA is competent authority. ठीक है, जो भी पहले हो। तो कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आ जाएगा तभी वो जाकर के रिवोक्ड होगा। चेंज ऑफ हेडक्वार्टर ड्यूरिंग सस्पेंशन, वेदर द हेडक्वार्टर में बी चेंज्ड, यस इट कैन बी चेंज्ड आइदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट, यदि इस चेंज से कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ रहा है। अगर कोई पर्सन बोले कि मैं यहाँ हूँ, हेडक्वार्टर मेरा रांची चेंज कर दीजिए, हेडक्वार्टर मेरा दिल्ली से मुंबई चेंज कर दीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एडिशनल कॉस्ट इज इन्वॉल्व। हाँ, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझे अप्रोप्रिएट है तो वो उसको रिलैक्स भी कर सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर किसी ने चार्ज ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हेडक्वार्टर मेरा चेंज कर दिया जाए, इट कैन बी चेंज्ड। प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, प्रमोशन सील्ड कवर में होता है। कहने का मतलब है कि ये मानते हुए कि पर्सन सस्पेंडेड नहीं है,
डीपीसी उसके प्रमोशन के केस को ऑन मेरिट पे कंसीडर करती है, एंड वॉट एवर द डिसीजन दैट इज प्लेस्ड अंडर वन इनवेलप, दिस इज कॉल्ड सील्ड कवर। जब सस्पेंशन जिस ग्राउंड पे है वो खत्म हो जाता है, इंक्वायरी कहा जाए, कंटेम्पलेटेड ग्राउंड है, या अगर वो डीम्ड सस्पेंडेड है तो वो ग्राउंड है, वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिला हुआ होता है तो सील्ड कवर खोला जाता है, और जो भी इसका रिकमेंडेशन होता है दैट इज इम्प्लीमेंटेड। अगर उसको पनिशमेंट मिल गया हुआ रहता है तो दिस सील्ड कवर इज नॉट ओपन इवन, और इसको तभी खोला जाएगा जब ये पनिशमेंट खत्म होगा, या खत्म होने के बाद फिर फ्रेश डीपीसी के सामने वो सील्ड कवर दिया जाएगा, फ्रेश डीपीसी उसको कंसीडर करेगा। सो दिस इज द प्रोसीजर अंडर सील्ड कवर। ठीक है। अपील रूल 23, सीजीएस नहीं है, इट इज सीसीएस है, सॉरी, जीजीएस नहीं है, सीसीएस रूल 23 के अंतर्गत हायर अथॉरिटी को अपील किया जा सकता है सस्पेंशन के खिलाफ। अब ये अपीलेंट अथॉरिटी कौन होते हैं, व्हेन वी विल कम टू द रूल नंबर 23 वी विल डिस्कस। नेक्स्ट, subsistence allowance, very important topic. Subsistence allowance during suspension period, how much a person gets? During suspension period a person gets whatever he will otherwise be getting if he was on half pay leave. So हाफ पे लीव पे उसको जो सैलरी मिल रही होती है, यानी हाफ लीव सैलरी, हाफ पे लीव पे कितनी सैलरी मिलती है, हाफ लीव सैलरी। इफ अ पर्सन्स बेसिक इज 60,000 rupees, half leave salary will be 30,000 rupees. So he will get 30,000 rupees, and over and above this 30,000 rupees he will get all allowances which he was getting before suspension. सस्पेंशन के डेट को वो जो अलाउंस पा रहा था, जो अलाउंस पा रहा था एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन, यानी ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन वो जो अलाउंस पा रहा है, कहने का मतलब वो अलाउंस क्या क्या पा रहा होता, अगर हाउस रेंट अलाउंस पा रहा होता मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस पा रहा होता मिलेगा। सो व्हाट एवर अलाउंस उसको उस समय मिल रहा होता सेम अलाउंस मिलेगा। अगर कोई अलाउंस उस डेट के बाद एप्लीकेबल हुआ है उस पोस्ट के लिए, वो उसको नहीं मिलेगा। एंड ये अलाउंस सब्सिस्टेंस पे के अमाउंट पे ही मिलेगा, कहने मतलब कि हाफ पे पे ही मिलेगा। किस रेट से मिलेगा, जिस समय वो दिया जा रहा है जो रेट है उस रेट से मिलेगा। सो इफ एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन इफ द डीए रेट वाज X%, एंड आज की तारीख जब उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जा रहा है, आज का सब्सिस्टेंस अलाउंस अगर रेट Y हो गया है तो रेट Y विल बी एप्लीकेबल, नॉट रेट X। सो अलाउंस वही मिलते हैं, कोई नया अलाउंस नहीं ऐड होता है, लेकिन रेट पेमेंट के समय का एप्लीकेबल रेट ही होता है। एलटीसी बहुत पिकुलियर रूल है, फैमिली के लिए एलटीसी मिलता है बट सेल्फ के लिए नहीं मिलता है। अब सेल्फ के लिए क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज ड्यूरिंग सस्पेंशन you cannot avail any leave and without leave you cannot avail LTC। लेकिन फैमिली के लिए किसी लीव की जरूरत नहीं है, इसलिए फैमिली को एलटीसी मिलता है, इट इज परमिटेड। सब्सिस्टेंस अलाउंस से कौन कौन सी रिकवरी अलाउड है, सो दीज रिकवरीज 5 कैटेगरी ऑफ रिकवरीज आर अलाउड। आईटी डिडक्शन है, लाइसेंस फी है अगर उसके पास क्वार्टर है, लोन एंड एडवांसेस अगर उसने लिया हुआ है तो उसकी जो रिकवरी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस की रिकवरी अगर है, ठीक है। और ये दोनों हेल्थ इंश्योरेंस ही है, दो टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। डिपार्टमेंटल हेल्थ इंश्योरेंस है तब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है तब उसका कंट्रीब्यूशन रिकवर होगा। सो दिस अमाउंट विल बी recovered. These deductions are allowed from the salary. Deductions which are not allowed, which are allowed only after consent of the employee, these deductions are insurance premium। अगर उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से डिडक्ट होके जा रहा है, रिफंड ऑफ जीपीएफ एडवांस, एडवांस लिया हुआ है या विड्रॉवल है तो, एनपीएस कंट्रीब्यूशन एंड ड्यूज टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बट
even if he agrees, these are not allowed. GPF contribution will not be allowed. Refund of GPF advance is allowed, लेकिन GPF contribution is not allowed. Any kind of recovery of loss is not allowed. जिसके लिए चार्जशीट हुआ है उसकी रिकवरी भी नहीं स्टार्ट हो सकती है सस्पेंशन के समय सब्सिस्टेंस अलाउंस। कोर्ट अटैचमेंट, यदि कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि एक पोर्शन, मतलब कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ द सस्पेंशन अलाउंस, सो इज दिस सब्सिस्टेंस अलाउंस। ये सब्सिस्टेंस अलाउंस कोर्ट से भी अटैच नहीं हो सकता है। सो कहने का मतलब है किसी भी हालत में दिस डिफाइंड 5+4 विद द कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय, इसके अलावा कोई रिकवरी उस पर्सन से नहीं हो सकती है। सब्सिस्टेंस अलाउंस इज देयर मिनिमम अलाउंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पर्सन। दिस सब्सिस्टेंस अलाउंस जब रिव्यू होगा 6 मंथ्स के बाद, तो उस रिव्यू के बाद या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है 50%, यानी कि 50% ऑफ बेसिक पे उसको मिल रहा है। ये इसका 50% डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, यानी कि या तो 25% या 75%, इन दोनों के बीच में कहीं भी डाला जा सकता है। अब किस ग्राउंड पे बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है? इफ द पर्सन इज कोऑपरेटिंग इन द इंक्वायरी, उसको बढ़ाया जा सकता है या इवन सेम भी रखा जा सकता है, और घटाया जाएगा इफ द पर्सन इज नॉट कोऑपरेटिंग इन इंक्वायरी। बट एनी केस इट कैन नॉट गो बिलो 25% of the salary what he was getting. Similarly, if during suspension a person is working outside या कोई दूसरा source of income है, then subsistence allowance उसको कितना मिलेगा? जो रियल सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा होता है उसमें से ये अर्निंग सब्सट्रैक्ट करके उसको दिया जाता है। For that purpose, every month the government employee have to give a certificate that he does not have any other source of income from outside. He is not working and not getting anything from outside. इस source of income में उसको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा हो, हाउस रेंट जो उसको पहले मिल रहा हो वो अभी भी मिल रहा है, ये सब नहीं काउंट हो रहा है। कहीं वो अपने एफर्ट से फिर से कमा तो नहीं रहा है, दिस इज काउंटेड। वॉलंटरी रिटायरमेंट, सस्पेंशन के समय वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर वो बोले भाई मैं सस्पेंडेड हूं, मेरे को आप रिटायर ही कर दो, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, आई हैव ऑलरेडी इम्पार्टेड 20 years of service, whether it can be allowed. The disciplinary authority may decide, provided if the departmental proceeding is pending will not result termination in service. जो पनिशमेंट उसको मिलेगा वो टर्मिनेशन इन सर्विस नहीं होगा, and no prosecution is contemplated or launched in the court. कोर्ट में कोई प्रोजिक्यूशन स्टार्ट नहीं होती। तो ये दो केसेस में अगर टर्मिनल पनिशमेंट उसको नहीं मिल रहा है, एंड द सेकेंड थिंग, यदि प्रोजिक्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अलाउ voluntary retirement. And when disciplinary authority will allow, of course, the appointing authority is competent to agree over the voluntary retirement, he will accept. Otherwise, ये दो circumstances यदि exist भी कर रहे हैं तो group A and B officers के लिए it is the minister who can decide, and group C के लिए even the head of the department में decide. मैंने कहा था head of the department जो term है उसका इस्तेमाल है departmental proceeding में, here is the use. रेजिग्नेशन, सिमिलरली रेजिग्नेशन में भी अलाउड, यदि जो पनिशमेंट हो रहा है उसका रिजल्ट डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट, यानी कि सर्विस टर्मिनेशन नहीं होने वाला है, एंड एट द सेम टाइम किसी मोरल टर्पिट्यूड का केस नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह का कोई केस नहीं है अगर उसके ऊपर, तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। या अगर उस पर जो पनिशमेंट एक्सपेक्टेड है चार्जेस से वो टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस नहीं होगा, बिकॉज दीज टू कंस्टिट्यूट टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। सो अगर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस नहीं होगा तो इट विल बी एडमिटेड। रिटायरमेंट, प्रोविजनल पेंशन, रिटायरमेंट में देखिए उस पर्सन को क्या मिलता है। अगर सस्पेंशन ही चल रहा है, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, या इवन इफ स्टार्ट नहीं हुई एंड पर्सन रिटायर कर जा रहे हैं, तो उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा?
प्रोविजनल पेंशन लेस देन ओरिजिनल पेंशन, यानी प्रोविजनल पेंशन ओरिजिनल पेंशन के बराबर मैक्सिमम हो सकता है या उससे कम, ये उसको अलाउ किया जाएगा, बट ही विल नॉट गेट ग्रेचुइटी, उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। यहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन तब तक कंटिन्यू करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक इसके रिवोकेशन का ऑर्डर नहीं इशू, और जब तक ये फिर से मॉडिफाई नहीं यानी एक्सटेंड नहीं हो जाता है। सो ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन इज एसेंशियल, विदाउट दैट सस्पेंशन कैन नॉट बी एंडेड, विदाउट दैट सस्पेंशन कैन नॉट बी एंडेड। अपील, सस्पेंशन का अपील मैंने पहले भी बताया, इस रूल के अंतर्गत अपील किया जा सकता है। व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग रूल 23 वी विल डिस्कस दिस। नाउ पेनाल्टीज, व्हाट आर द पेनाल्टीज? इसमें एक चीज गौर करेंगे, वार्निंग, एडमोनिशन, रिप्रीमेंट, दीज आर नॉट पेनाल्टीज। सो कोई अगर किसी पर इंक्वायरी चालू हो गई है तो या तो वो एक जेनरेट करेगा या उसको डिफाइंड पेनाल्टीज में से कोई भी मिलेगा। ये कोई दे करके कह देना कि भाई पेनाल्टी हमने दे दी, दिस कैन नॉट, बिकॉज वार्निंग, एडमोनिशन एंड रिप्रीमेंट is not considered proper penalty. So what are the penalties? This is defined under Rule 11. Penalty, जैसा मैंने पहले बताया था, there are two categories of penalties, minor penalty and major penalty. There are 5 minor penalties and 5 major penalties. So गौर करें, censor, censor का मतलब होता है strongly condemning the action of the person. पर्सन ने जो भी किया है उसकी घोर निंदा की जा रही, यू आर स्ट्रांगली कंडेमिंग द सेम, दिस इज कॉल्ड सेंसर। सेंसर किसी पीरियड के लिए नहीं होता है, सिंपली हिज एक्ट इज सेंसर्ड। ऐसा नहीं कि 6 महीने तक के लिए निंदा की जा रही है, ऐसा नहीं, हिज एक्ट इज सेंसर्ड। द सेकेंड वन इज रिकवरी, कोई अगर लॉस उससे हुआ है तो रिकवर किया जा सकता है। थर्ड वन इज विद होल्डिंग प्रमोशन, अगले डीपीसी में उसका प्रमोशन ना कंसीडर किया जाए। रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द सेम लेवल, द पर्सन इज वर्किंग इन लेवल 10 एट स्टेज 14, सर्टेन पीरियड के लिए उसको स्टेज 12 पे कर दिया गया, सो दिस रिडक्शन। स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, स्टेज 14 पे था वो, 2 इयर्स के लिए उसका इंक्रीमेंट रोक दिया गया। इस तरह का मैक्सिमम इंक्रीमेंट 3 रोका जा सकता है, and that also without cumulative effect, यानी कि जब उसको 2 अगर इंक्रीमेंट रोक दिया गया, 3rd ईयर का जो इंक्रीमेंट लगेगा तो उसको एक ही नहीं ये 2 रोके हुए इंक्रीमेंट में मिल जाएंगे, लेकिन इसका एरियर नहीं मिलेगा। 2 साल जो रोक दिया गया था, he will not get arrear for that, only 3 increment henceforth will be applicable. This is called cumulative effect. मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी में यहां लोअर टू हायर मैंने लिखा था, मेजर पेनाल्टी में हायर टू लोअर। डिसमिसल, डिसमिसल मीन्स द पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस, his service is terminated, and at the same time he cannot be work, he cannot work or he cannot be re-employed in the same organization. यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि इन द गवर्नमेंट ही कैन नॉट बी री-एम्प्लॉयड, दिस कैन नॉट बी अ केस। अ पर्सन डिसमिस्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट may join private sector, central government may join state government departments, but he cannot join back central. So जो फंडिंग सोर्स वहां है, उस फंडिंग सोर्स में वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता है, that is called dismissal. In removal, he is removed but he can join back same organization or organization funded by the same sources, वो वहां ज्वाइन कर सकता है रिमूवल में। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। डिसमिसल में वो ज्वाइन नहीं कर सकता है बैक, री एम्प्लॉयड नहीं हो सकता है सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोस्ट पे। रिमूवल पे ही कैन ज्वाइन बैक ऑन एनी पोस्ट, हो सकता है उसके सीनियर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए, लेकिन उस पोस्ट से उसको हटा दिया गया। कंपल्सरी रिटायरमेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट जहां प्री मेच्योर्ड रिटायरमेंट उस पर्सन को दे दिया जाता है
This is also called premature retirement for the purpose of departmental proceeding, because जब NPS और pensionary benefit deal करते हैं, premature का मतलब वहां बदल जाता है. So compulsory retirement is also called premature retirement for the purpose of departmental proceeding. And here in premature retirement, that is in compulsory retirement, person को सर्विस से हटा करके उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती रहती है, जो इन दोनों केसेस में डिसमिसल एंड रिमूवल में उसको नहीं मिलती है. These three constitutes the termination from the service, जिसको कि मैंने यहाँ लिखा है. These combinedly are called termination from the service. एक में उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता रहता है लेकिन सर्विस में नहीं होता है. दूसरे में सर्विस से हटा दिया जा सका है लेकिन फिर वहां ज्वाइन कर सकता है. तीसरे में वहां ज्वाइन नहीं कर सकता है. ऑफ कोर्स डिफरेंट फंड ऑफ सोर्स में वो ज्वाइन कर सकता है. विद होल्डिंग मोर देन 3 इंक्रीमेंट विद कॉम्युलेटिव इफेक्ट. 3 से ज्यादा इंक्रीमेंट हम रोक रहे हैं या इंक्रीमेंट को हम कॉम्युलेटिव इफेक्ट में रोक रहे हैं. मतलब 2 साल के बाद जब पनिशमेंट खत्म भी होगा तो ये इंक्रीमेंट उसका परमानेंटली चला गया. वो अगर स्टेज 14 पे है तो 2 साल के बाद स्टेज 15, 16, 17 पे नहीं आएगा, वो 15 में ही जाएगा. सो 2 इंक्रीमेंट का उसको परमानेंटली लॉस हो गया. दैट इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव इफेक्ट. या 3 इंक्रीमेंट से ज्यादा की पेनाल्टी दी, 5 इंक्रीमेंट रोक दिया गया. सो दीज ऑल आर कॉल्ड विद होल्डिंग. दिस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी एंड दिस इज अ मेजर पेनाल्टी. ठीक है. यहाँ लेकिन एक कंडीशन है. इन केसेस लाइक पोजेशन ऑफ एसेट डिस्प्रोपोर्शनेट टू इनकम, यानी कि इनकम मोर देन डिफाइंड सोर्स ऑफ इनकम, या करप्शन, अगर ये दोनों में से कोई भी केस हो, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ मोटिव टू रिवार्ड, कोई फेवरिज्म करने के, फेवरिज्म में हो सकता है कि हमको कहा गया हो कि इसके फेवर में एक्शन ले लो, या कहा गया हो कि भाई इसके अगेंस्ट एक्शन मत, कुछ करने के या ना करने के, उसके रिवार्ड में यदि करप्शन का केस है या पोजेशन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है, तो पनिशमेंट विल एसेंशियली बी दीज टू ओनली. यहाँ पे कंपलसरी रिटायरमेंट भी नहीं दिया जा सकता है, यही दोनों पनिशमेंट. सो सिंपली समझना है कि करप्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में ये दोनों ही होते हैं. एंड करप्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में दोनों में मोटिव उसका प्रूव करना होता है कि उसने बेनिफिट लिया, एट द सेम टाइम उसने क्या फेवरिज्म किया. आगे बढ़े हम नेक्स्ट में. इंक्वायरी माइनर पेनाल्टी के लिए इंक्वायरी इज नॉट कंपल्सरी, बट फॉर मेजर पेनाल्टी इंक्वायरी इज ऑलवेज कंपल्सरी. ठीक है. माइनर पेनाल्टी के केस में इंक्वायरी कहाँ कहाँ हो सकती है और कहाँ कहाँ नहीं हो सकती है. ठीक है. माइनर पेनाल्टी में यदि 3 से ज्यादा इंक्रीमेंट रोका जा रहा है या कॉम्युलेटिव 3 से ज्यादा इंक्रीमेंट रोकने का कोई भी केस हो तो माइनर पेनाल्टी में इंक्वायरी होगी. दूसरा, विद होल्डिंग इंक्रीमेंट विद कॉम्युलेटिव इफेक्ट. अगर कॉम्युलेटिव इफेक्ट से हमको इंक्वायरी रोकना है इंक्रीमेंट को, तब भी इंक्वायरी होगी. विद होल्डिंग इंक्रीमेंट, यदि कोई रिटायर होने वाला है और इंक्रीमेंट रोक दिया गया है विच में अफेक्ट इट हिज पेंशन, तो भी इंक्वायरी जरूरी है. अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें इंक्वायरी, इसका इंक्रीमेंट रोकना पड़ सकता है, तो भी इंक्वायरी होगी. एंड यदि चार्ज्ड ऑफिसर, सीओ का मतलब है चार्ज्ड ऑफिसर, यदि चार्ज्ड ऑफिसर कहे कि भाई मेरे को अपने केस में कुछ विटनेसेस भी लाने हैं, तो भी इंक्वायरी होगी. सो ये 4 केसेस में माइनर पेनाल्टी के केस में भी इंक्वायरी करानी पड़ती है. आर्टिकल 311, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज पूरा का पूरा डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इसी पे डिपेंडेंट है. इसको मैं इस सेशन में भी कवर कर रहा हूं और इसके बाद आई विल एंड द सेशन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आल्सो आई विल बिगिन फ्रॉम आर्टिकल 311. आर्टिकल 311 कहाँ का आर्टिकल है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, कॉन्स्टी का आर्टिकल है. ठीक है. लॉ स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली कॉन्स्टी कहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म कॉन्स्टी. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टी का पार्ट है. इसके 2 एलिमेंट्स हैं. An employee cannot be dismissed or removed from service or retired compulsory. That is, a service of an employee cannot be terminated, जो कि
टर्मिनेशन के डेफिनेशन में ये तीनों आता है, बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही उसको टर्मिनेट करेगा। बट यहां एक चीज है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी may delegate this power to disciplinary authority by some general order or by some specific order. अगर ऐसा है तो that will be applicable. दूसरा, the person cannot be dismissed, removed from the service or retired compulsorily. Again, the service of a person cannot be terminated without giving him an appropriate opportunity to defend himself. यानी उसका पक्ष सुने बगैर नहीं हो सकता है उसका टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस। सो उसका पक्ष कैसे सुनेंगे? उसके पक्ष को सुनने के लिए इंक्वायरीज है, और इंक्वायरी के रिपोर्ट पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का डिसीजन जरूरी है। सो ये दोनों स्टेज यदि नहीं पूरा हुए हैं तो उसका रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस नहीं हो सकता है। बार बार मैं टर्मिनेशन यूज कर रहा हूं, रिमूवल नहीं कर रहा हूं, बिकॉज टर्मिनेशन इंक्लूड ऑल थ्री। टर्मिनेशन इंक्लूड्स ऑल थ्री, सो मैं टर्मिनेशन वर्ड बार बार इस्तेमाल। ठीक है, यहां एक चीज समझने वाली बात है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब। सो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उसको देनी होती है, और वो अपॉर्चुनिटी इन वर्ड्स एंड इन स्पिरिट दोनों में देनी होती है। एक्चुअली देनी होती है, कैसे देनी होती है सेकंड सेशन में हम आएंगे, एंड सेकंड सेशन में इसको पूरा एंड करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन मेल और यू कैन पोस्ट योर व्हाट्सएप ओवर माय व्हाट्सएप, and I will reply it back or will comment in the next session. Thank you very much.